So hello and namaskar dosto. I welcome you all to the episode 1 of another season of Cutting Chai. Today a very special guest is joining us who has transformed the lives of countless students, many professional with her expertise in English confidence coach and personality development coach. It's been more than 12 years and she still make her mark and she has made a very remarkable achievement. So today's episode is going to be very inspiring, very educating and very entertaining. So without any further ado, let's welcome the gold medalist, Ms. Shilpi Khatri ma'am. Thank you. So ma'am, my viewers are so excited to meet you. So let's start with the very beginning. So मैं चाहता हूँ कि हम पहले आपके background के बारे में जानें. And there is lot to know, there is lot to talk about and I'm very excited. So सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा about your childhood. Okay. Good morning, Nadeem, and good morning to everyone. Yes. I am Shilpi Khatri. I am an English confidence coach and personality development expert in my own studio. That is a persona. Okay. This is derived from French word, a person or personality. Now, if I talk about my own journey, like my childhood or my intro, I am Jaipur based, born and brought up here, and I am from joint family. मेरी joint family रही, working parents रहे. Now they are retired. Okay. We are two sisters, और I'm the younger one. Mm-hmm. और मैं ये कह सकती हूँ कि since my childhood, I have been inclined or fascinated towards fame and name. Wow. I had that thing in my mind. I don't know why. Okay. And but the main core what I can now reconnect, जो अभी मुझे समझ आता है, मेरे grandfather CMHO रहे फर्स्ट जयपुर डिस्ट्रिक्ट के. Okay. उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया कि कैसे फेम एंड नेम अर्न किया जाता है. वी हैव टू वर्क हार्ड इफ वी वांट टू एग्जिस्ट फॉर लाइक परसिवरेंस चाहिए, that we need to work hard. Absolutely. There is no shortcut. जी. So that was in my mind. एंड फॉर्चुनेट इनफ कि मैं थ्रू आउट स्टडीज में बहुत अच्छी रही और क्रिएटिव राइटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग थी. Okay. और रीजन बिहाइंड दैट आई यूज्ड टू आई वाज अ गुड ऑब्जर्वर. So I used to think about the things, how the things happen, or some inquisitiveness. वो I used to write. Okay. और गोल्ड मेडल्स विन किए, रिवॉर्ड्स, मेनी रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस आई ऑन. तो वो एक चीज मेरी ग्रो करती रही विद द टाइम. The way I worked, तो उसका जो आउटपुट आया, that made me more pressurized about कि yes, if you do good, you get good. Okay. तो वो एक चीज रही. और inherent trait जो होते हैं, Yes. discipline, sincerity, focus रही, ये सब inherent traits आए, automatic. तो easy रहा वो चीज, जर्नी मेरी जो ग्रो करने के लिए required होती है. तो मतलब काफी बचपन से लेकर अभी तक की जो पूरी आपकी जर्नी रही है वो भी काफी इंस्पायरिंग ही रही है. कहीं ना कहीं मतलब वो जो ट्रेट होते हैं ना बचपन से, और वो अभी भी है कहीं ना कहीं, तो दैट्स आल्सो वेरी इंप्रेसिव. बट देन अभी जैसे आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. बट आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट कि आपने कैसे इसको स्टार्ट किया, मतलब हाउ यू हैव स्टार्टेड, व्हाट मोटिवेट यू टू बीइंग अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच. This was not pre-decided, Okay. but actually, like, I was very career-oriented. I finished my MBA in Advertising and Communications from Delhi. Then when I came back Jaipur, I had 5 to 7 year job. Okay. And fortunately, I got married. Marriage मेरी डॉक्टर से हुई जो सेल्फ एम्प्लॉयड है. Okay. और डे एंड नाइट ही वर्क्स. तो फाइनली एक जो फेज आता है मैरिज के बाद, मुझे ऐसा महसूस हुआ दैट यस, वन पॉज इज नीडेड so that we can understand, we can settle down in the new environment. वो एक न्यू जर्नी होती है, एक न्यू चैप्टर होता है. एंड बट काम नहीं रोका. जी. क्रिएटिव राइटिंग में रही. अब मेरे हस्बैंड का जो मार्केटिंग प्रमोशंस था वो मैं देखती रही, तो वो मुझे बूस्ट अप करता रहा टू डू समथिंग मोर एंड मोर. देन मेरी मतलब मैरिज के बाद 2 kids I have. My younger son, when he was 7 months old. Okay. अब वो 8 है. और जब वो 7 months का था, then I decided कि अब this is the time for me to go out and I can have whatever I want with respect to my career. Wow. ये चीज रही. और एक ड्रीम जो था, वो एक ड्रीम, मुझे लगता है एक ड्रीम जो होता है वो थॉट की तरह होता है. बिल्कुल. अगर आपने उसे कैच किया, यू आर डन, अदरवाइज यू स्टैंड नोवेयर. लेकिन उसके पीछे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है. इसका रीजन है ब्रेन स्टॉर्मिंग का. जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, इंडिविजुअल होते हो, यू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन. Absolutely. बट आफ्टर मैरिज इजी नहीं होता.
बिल्कुल। स्पेशली आपने 6 ईयर का पॉज दिया फ्रॉम द मार्केट, और जो आपकी कंपनीज हैं, बिकॉज स्टडीज ऐसी थी, वो प्रोफेशन जो है वो अपनी स्पीड में है, आप रुके हैं, बिल्कुल। तो आपको उसके मैच बिठाना है, आपको उसके साथ जस्टिफिकेशन करना है। एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने मतलब फैमिली में एक डिस्कशन हुआ मेरे हस्बैंड से, बच्चे तो बहुत छोटे थे, जी। तो ही इज लाइक you can do it, don't give a single thought to it, whatever you want you do it। तो कहीं एक स्टॉपेज नहीं आया जी। कि एक पार्टनर से जो एक्सपेक्टेड होता है सपोर्ट, दैट वाज देयर। ओके। वो ड्रीम को कन्वर्ट करने के लिए फिर अब किया क्या जाए, मैंने सबसे फर्स्ट अपनी खुद की स्वॉट एनालिसिस करी कि मैं किस चीज में स्ट्रॉन्ग हूँ। बिल्कुल। मेरा जो जॉब का एक्सपीरियंस रहा उसमें मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करते थे, मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो इंडियन कंपनीज या इंटरनेशनल कंपनीज के साथ होता था, तो मेरा इंटरेक्शन भी उन्हीं के साथ होता था जी। तो उनके साथ इंटरेक्शन जब मैं करती थी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट थिंग कि जिस टाइप का उनका एक्सेंट होता था, आई यूज्ड टू टॉक विद द सेम वे। ओके। वो एक ऑटोमेटिक गेयर अप होता था, आई डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट दैट आई हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो उसके रीजन से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई मेरे ऑफिस में कि सब ऑर्डिनेट को भी आप ही ट्रेन करेंगे। ओके, वाओ। तो मैं हाउ टू कैरी योरसेल्फ, हाउ टू बिहेव और हाउ टू इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट्स, आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है काम पे, तो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाज गिवन बाय मी। ओके। तो वो एक चीज, एक चैप्टर इंक्लूडेड था। जी। जब मैं एमबीए में थी तब मेरी फ्रेंच कोच, वो जब हमें एड्रेस करके ट्रेन करती थी, फ्रेंच वाज अ न्यू चैप्टर फॉर अदर्स, नॉट फॉर मी। तो शी फाउंड मी कि ये पढ़ा सकती है, तो मेरे सारे बैचेस को, मतलब जो एमबीए के टाइम के बैचेस को, उनको मुझे ट्रेन करने को दिया गया। ओके। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, सबको मैं फ्रेंच पढ़ाया करती थी, वो एक चैप्टर इंक्लूड हुआ। तो जब मैंने अपनी स्वॉट एनालिसिस करी तो मुझे लगा कि यस आई कैन डू जस्टिफिकेशन विथ माई वर्क। तो उसके बाद I just created my roadmap and I just get back to work, you can say, or I started this profession. वाओ, लवली। मतलब कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेस्टिनी थी दैट हैज प्लान्ड सो मच फॉर यू, और वो जो है पूरी जो कायनात सब कुछ मिलवा के करवाती है वो करवाया आपसे। बट नहीं, आज जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और जिस तरीके से आपने बहुत सारे काउंटलेस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लाइफ में जो इंक्लूड किया, ऐड किया है, दैट इज कमेंडेबल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल ना, जैसे अभी सिंस आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हो, तो मैं आपसे बेहतर इसका जवाब और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग ना, बच्चे या फिर पेरेंट्स, सभी लोग आजकल गुड ग्रेड्स की तरफ भागते हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उन्हें अच्छे मार्क्स लाने, बट कोई भी ये नहीं समझता कि अलोंग विद दैट योर पर्सनालिटी हैज टू बी गुड। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुड ग्रेड्स की जहां तक बात होती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। एज सुन एज आई सेड कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज, आपको एक पोर्ट्रेट रेडी हो गया होगा आपके आगे, यस, एक इमेज बनती है। लेकिन ये एजुकेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, हम ग्रेडिंग की बात करते हैं, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है अदर देन मार्क्स। आप इनक्विजिटिव रहते हैं, आप नॉलेजेबल बनते हैं, और नो वंडर्स इफ आई से कि आप एक किसी ना किसी सब्जेक्ट में एफिशिएंटो बनते हैं, तो आप जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपकी कमांड आती है, और वो ही मुझे लगता है पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं थ्रू द स्कूलिंग और थ्रू द गुड ग्रेड्स। वो एक जो डिसिप्लिन बनता है वो आपको थ्रू आउट लाइफ पे करता है। But now if I come to PD part, I have noticed my work experience कि कम्युनिकेटर भी वो अच्छा हो, वो ग्रूम्ड भी अच्छा हो, ये मैंडेटरी नहीं। बिल्कुल। तो टाइम इट हैपेंस कि बहुत ही ड्यूरेशन लंबा होता है पढ़ाई का, है ना, उसमें पीपल फॉरगेट अबाउट देमसेल्फ, अबाउट देयर ग्रूमिंग और अबाउट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर मच इनटू स्टडीज। तो वो स्टडी करेगा तो इंटरेक्शन तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। वो एक्सपेक्टेशन होती है, टाइम की एक्सपेक्टेशन है, बट आप उसमें रुके नहीं। ये मेरा पर्सनल सजेशन होता है सबको, क्योंकि एक्सपीरियंस, जैसे मैंने डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया, इंजीनियर्स को, यूपीएससी एग्जाम में एक्सपीरियंस है, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, मेरा लाइक डिफेंस पीपल इनफैक्ट आई ट्रेन्ड। तो आप, मुझे जो एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि आप ब्रेनी है, नो डाउट ब्रेनी पीपल दे आर, लेकिन वो कम्युनिकेटर होने में भी एक गैप है, तो उसकी जो ब्रिजिंग का काम है वो मैं करती हूँ, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू आई डू, दैट इज द थिंग।
That's lovely. Even जब मैं मतलब when I was in school, so I had this always मतलब big thing in my mind कि अभी ठीक है, जब good grades हैं तब तक ठीक है, लेकिन what if I step out into this real world, वहाँ पे जो चीज़ होगी वो शायद मार्क्स तो हर कोई लेकर आएगा ही आएगा, बट वो चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आई गेस वो आपकी पर्सनैलिटी या Yes. योर प्रेजेंटेशन ही है. बट देन ओके सो जैसे अभी आप पर्सोना के थ्रू जो है लोगों को ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं, और पर्सोना को जब आपने स्टार्ट किया, सो व्हाट वाज द मेजर विजन बिहाइंड इट? As I said, my journey was that way कि I was communicator. Like मैंने जब sort किया अपना जी. strengthening, मतलब अपने strengths और weakness देखे, तो I don't have that thing कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करूँ या अंडर जज करूँ, वो मुझ में नहीं था फैक्टर. Okay. तो स्ट्रेंथ्स देखी, एनालाइज किया अपने आप को कि अगर आप मैरिड है, रिस्पॉन्सिबल है, तो रादर देन क्रीपिंग अपॉन व्हाट यू डोंट हैव, जस्ट डू व्हाट, जस्ट थिंक ओवर इट, जस्ट सीक व्हाट यू हैव. तो अपॉर्चुनिटीज कभी भी ऐसा नहीं है एक बंद हुई तो you are gone, you are finished. It True. never happens that way. Once the opportunity is done, that means many opportunities down the line are waiting for you. Absolutely. तो वो मैंने सारी चीजें की, और फिर जो मेरा स्ट्रेंथ था मैंने इसमें स्टैंड लिया, मैंने आगे बढ़ी, और इतना नहीं सोचा था कि वेरी फार I can go that way. When I started, I was like, honestly, I started my work, और उसके बाद gradually I picked up the pace, and now I have my own work, my own studio. So that way it was. That's incredible. मतलब आपने एक स्टूडेंट से लेके एक वर्किंग प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, डिफेंस, इन सभी को ट्रेन किया है. बट अगेन एक जो आपका वो होता है ना कि हाँ आपको कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो आप इसके थ्रू भी आप वही चीजें कर पा रहे हो, मतलब एक सोसाइटी को गिव अप बैक वाला जो चीज है वो. ओके सो नाउ अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि पर्सोना के थ्रू आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो, कोच कर रहे हो, सो आई वांट टू आस्क कि सिंस देयर आर लॉट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच या फिर इंग्लिश कॉन्फिडेंस कोच आर देयर, सो हाउ पर्सोना इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दोस? Definitely, I do that. I believe that, yes, I'm a part. The reason I have customized, I'm not in rush. I'm not believing in stuffing. Okay. I just want to work good way. I want to change people's life. First of all, I have that vision. Yep. और एक होता ना कि आपको people remember, मतलब याद रखें कि yes, she was that person who changed my life. Absolutely. Teaching, you can have social media apps, you have so many things to get trained in anything, right? Yes. But I have that kind of vision. और ये कस्टमाइज रखा है मैंने, वन ऑन वन इंटरेक्ट करती हूँ. Okay. As soon as any candidate approaches me, मैं उनको स्क्रीनिंग करती हूँ उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ, Wow. एंड सेकेंड लेवल पे उनकी सेपरेटली इन पर्सन Okay. वेरिएशन आता है. जी जी. तो वो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करती हूँ, उनके वीकनेसेस देखती हूँ, थ्रू आउट उनको चेक करती हूँ, व्हाई द थिंग्स आर नॉट अप टू दैट मार्क. स्पीकिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स हो चाहे ग्रूमिंग हो, इन दोनों में मेरा यही पैटर्न रहता है. फिर रोड मैप तैयार होता है, देन आई स्टार्ट, और बीच बीच में उनका एनालाइजेशन होता है, रिपीट करती हूँ और उनसे इंटरेक्शन करती हूँ इफ रिक्वायर्ड. अगर रोड मैप चेंज करना है मुझे, या मेरे को उनके साथ कोई ऐसा लगता है कुछ और टेक्निक भी यूज करनी चाहिए कि टू गेट द बेस्ट आउटपुट, तो वो भी मैं करती हूँ. Wow. तो दैट वे आई गो. ओके सो कहीं ना कहीं एक वो जो पर्सनल टच होता है वो हर एक को मिलता है. yes. जो पर्सनल एक आप किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली जो है आप कोच करते हो, ऐसा नहीं कि इट्स लाइक कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एंड देन यू आर टीचिंग देम कि ओके दिस एंड दैट. तो ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग डिफरेंस, और ये बहुत ही अच्छी स्टाइल है. इवन आई ऑलवेज वांटेड समबडी कि कोई ऐसा हो जो पर्सनली कोच करे, जो मेरी खामियों को बताए. Yes. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, जैसे आपने बताया कि आपने डिफेंस जो हमारे हैं उनको आपने ट्रेन किया है, डॉक्टर्स को आपने ट्रेन किया है, तो कोई भी एक ऐसी स्टोरी, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन जो आज आपको अभी भी याद हो, वो आपको आगे भी याद रहे, कोई भी? Many I have. Trust me. Like if I start, like the entire day can go with that. Okay. But a few are remarkable, Yes. outstanding, which every time touch my heart. Okay. That is the thing. One thing I can, like one person, I can reconnect now. एक स्टूडेंट थी, वो 30s में थी. Yes. और उनकी क्रोनिक डिजीज थी उनको, एंड ड्यू टू दैट उनको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था. शी वॉज एजुकेटेड, और घर से बाहर जाना या कोई काम करना, दैट वॉज नॉट दैट. तो वो मेरे पास आई, वी यूज टू बी नियर टू. तो वो आई, उन्होंने स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट किया, फिर पीडी किया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया,
एज आई सेड की पूरी स्क्रीनिंग होती है, देन शी शेयर कि ये मेरी प्रॉब्लम है, और काफी सिंसियर थी वो प्रॉब्लम। जी। तो वो चीज मैंने समझी, और उसके बाद मैंने उनका स्टार्ट किया, और काफी अच्छा आउटपुट रहा, क्योंकि वो भी सिंसियर थी अपने काम जी। के लिए। एंड आज अगर मैं उनका करंट स्टेटस बताऊंगी, यू विल बी शॉक टू नो कि जो पर्सन घर से बाहर नहीं जा सकता, वो आज ट्रैवलिंग कर रहा है वाओ। डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट independently. She has her own startup. Wow, that's incredible. And she never talk about her disease. She is happy go person. She is confident. The most important thing is shake करती थी, पढ़ते वक्त भी shake करती थी. Every time she used to ask कि मैम मैं सीख जाऊंगी क्या? तो I had that thing, don't you worry. That works. और मुझे अब वो बहुत I feel pride about it. Not proud. Like एक बहुत अच्छा लगता है कि I could change somebody. Absolutely. कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे CMHO रहे, उनको मैंने देखा, he was not into running towards money, he was earning good position, dignity. तो वो चीज की एक लाइफ चेंज करते हैं तो आपकी रिमेम्बरेंस रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट यू डिड द जॉब, यू गेट योर रिवॉर्ड एंड यू आर डन। जी। Things pay you the other way also. She is happy and I am happy for her. और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है ऑफ कोर्स जहाँ पे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। एंड आई गेस ये जो चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपने उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए, ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है आप जैसे एजुकेटर्स का और आप जैसे कोच का। सो दैट्स वंडरफुल एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट। एंड आई विश कि अगर आप में से भी कोई जाना चाहते हैं, मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और उसकी डिटेल्स हम अभी आगे बात करेंगे। सो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आज ना आप अभी यहाँ बैठे हो तो आप बहुत सारी वुमेन के लिए जो हमें देख रहे हैं उनके लिए एक इंस्पायरिंग फिगर हो। जैसा आपने बताया कि आपकी मतलब शादी के बहुत टाइम बाद, एक काम को छोड़ने के काफी लंबे गैप के बाद आपने ये सब कुछ स्टार्ट किया फिर से। बहुत सारी फीमेल्स ऐसा नहीं कर पाती है, उनको लगता है कि नाउ इट्स ओके, दिस इज माय लाइफ, लेट इट बी, ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए बताएं कि हाउ एक्चुअली आर मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखिए ये एक बहुत ही, अगर मैं किसी हाउसवाइफ के साथ बात करूंगी या मैं एक प्रोफेशनल से बात करूंगी तो ये चीज वो कोऑर्डिनेट इजीली कर पाएंगे। जी। ये इजी नहीं होता, बट बहुत टफ भी नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं होता, और मेरे लिए इम्पॉसिबल वर्ड तो डिक्शनरी में है ही नहीं। तो लेकिन एक चीज होती है कि आपने एक सपना देखा, यू हैड अ ड्रीम, जस्ट दैट इज वन थॉट, राइट? उसके बाद आप उस जर्नी को तब ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं जब आपके पास कोई सपोर्टर हो और मोटिवेटर। क्योंकि आपके भी फॉर्म्स आएंगे बीच बीच में, ये जर्नी डम्स, इसमें काफी डम्स भी होते हैं, बम्स भी होते हैं, रोजी रोड नहीं होती, दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो जब तक आपके पास एक अच्छा सपोर्टर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट, लाइक माई हस्बैंड इज अ ग्रेट सपोर्टर, ही इज अ ग्रेट मोटिवेटर, इन फैक्ट बेटर देन मी एट टाइम्स आई फाइंड इट। वो मुझे कभी भी ये नहीं कहते कि यू कांट डू दिस, आई एम विथ यू, जस्ट गो अहेड। तो एक ये चैप्टर जो है वो मुझे हमेशा चार्ज रखता है कि यस, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आप एक फीमेल से पूछेंगे तो ये बात वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगी कि कॉन्फिडेंस जो उसको आगे बढ़ने के लिए आफ्टर मैरिज, स्पेशली आफ्टर बीइंग अ मदर, तो वो चीज रही। और मैनेज जरूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स करेंगे तो you can't carry it ahead. Yes. उस चीज के लिए आपको डे, लाइक आपका मॉर्निंग जब स्टार्ट होता है तो ही आपको प्लानिंग करनी होती है कि आज आपका ये दिन है, आपके ये मीटिंग्स हैं या आपके सेशंस हैं, तो उसको आप कैसे ट्यून अप करेंगे, और घर तो साइड बाय साइड चलता है। बिल्कुल। तो आई स्टार्ट माय डे कि मेरे किड्स हैं, आई सेंड देम स्कूल एंड देन आई हैव फिटनेस प्रोग्राम, आई डू दैट। वाओ। दैट नॉट जस्ट charge me physically, mentally also. It gives me energy. It gives me positive vibes. वो पूरे दिन काम करती है। Oh wow. उसके बाद मैं sessions लेती हूँ. I manage in between. I manage my house to wherever required for me. और then end up with like अगर बच्चों को पढ़ाना है या घर पे कोई requirement है, then I do that. तो बस सबसे important चीज़ है कि आप अपने अंदर believe रखें that you have that power in you. और second चीज़ कि आप को जो सपोर्ट दिया गया है घर पे, उसका रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल। उस पे क्रीपिंग ना करें कि ये नहीं है, वो नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट जो है उस पे आप पहले स्टेप अप करें, देन मूव अहेड। तो अपने आप ही आपका वेव होता जाएगा, सब कुछ आपको, यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बट डोंट स्टॉप योरसेल्फ।
डेफिनेटली डेफिनेटली। तो कहने का मतलब मैम आपका यही है कि अगर कोई फीमेल या फिर कोई भी एक मदर कुछ भी हाँ। करना चाहती है तो सबसे पहले तो एक जरूरत है कि उनको खुद पे सेल्फ बिलीव ही Yes. होना चाहिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक फैमिली का सपोर्ट वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन के Yes. आता है, जैसे कि आपको था सर का सपोर्ट। Yes. लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल से शायद उनको ये सपोर्ट ना मिल पाता हो, बट उनके लिए भी ये है कि अगर उन्होंने वो सोचा है कि उनको वो चीज करनी है, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट एंड देन अल्टीमेटली चीजें होती हैं, एंड यू आर द इंस्पिरेशनल फिगर फॉर ऑल ऑफ देम। सो मेरा भी नेक्स्ट सवाल यही है कि जो आपका पर्सोना है, जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बहुत हजारों लाखों लोगों को जो ट्रेन कर रहे हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी आने वाले फ्यूचर में आई थिंक 5 to 10 years बाद क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या अपग्रेडेशन है जो हमें देखने को मिलेंगे पर्सोना में? देखिए सबसे फर्स्ट तो अभी 5 to 10 ईयर डाउन द लाइन व्हाट आई हैव द प्लानिंग, मैंने जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स माइग्रेट करते जी। हैं, फॉरेन जाते हैं या पढ़ाई एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे इतना जो एक मैं पास्ट में देखती हूँ एक थोड़ा सेटअप में यहाँ पे था, और लोगों का इम्प्रेशन भी है दैट वी गेट इट बेटर अब्रॉड और इन अदर सिटीज, सॉरी। तो वो एक चीज है। ओके। तो मुझे फॉरेन माइग्रेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स या जॉबर्स और प्रोफेशनल्स, मैं उन पे स्टार्ट कर चुकी हूँ काम, उसको और सिस्टमैटिक करना चाहती हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, वाओ। तो वेरी सून आई एम प्लानिंग टू लॉन्च इट, पब्लिश इट, एंड ऑनलाइन मेरा प्लेटफॉर्म है, बट आई वांट टू मेक इट मोर सिस्टमैटिक। ओके। अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड ऐप बनाने का भी प्लान किया है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया स्टूडेंट्स की हर्डल्स को देख के कि कहाँ कहाँ निपुणस हैं उनके, आई एम होपिंग फॉर दैट। वाह, इनक्रेडिबल। मतलब जो चीजें आने वाले टाइम में हो सकती हैं, जब उनकी पॉसिबिलिटी आप उनके लिए अभी से प्रेप करके और वो अभी सब चीजें रेडी कर रहे हो, दैट्स इनक्रेडिबल। सो नाउ मैं अभी अगला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि आप फॉरेन स्टूडेंट्स को भी जो है जो आइल्स कह सकते हैं, आइल्स एंड टॉफल, यस, तो आप उनके लिए भी जो है उनको प्रोवाइड Yes. करते हैं, उनकी क्लासेस कोचिंग्स जो भी Yes. होती हैं, सो दैट्स वंडरफुल। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि एक चीज ना स्टार्ट नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है, दे आर इन लैक ऑफ मोटिवेशन कि अगर उनकी लाइफ में कुछ मतलब चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर भी कुछ कहें, सिंस आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है ऑलरेडी। देखिए सबसे फर्स्ट जो मेरा मतलब मैं 7 to 55 तक के स्टूडेंट्स को उठाते, 55 ईयर, तो सबका एक डिफरेंट होता है थिंकिंग का पैटर्न, है ना। तो उस बेसिस पे मैंने जो देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेल्फ डाउट जो है वो अपने आप में रूइनिंग होता है, वो बैक ऑफ करता है। तो इनिशिएट करें और कॉन्फिडेंस ना करें, ये कोशिश करें, यस, इनिशिएट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है प्रोकास्टिनेशन, डॉजिंग नहीं करें, प्रोकास्टिनेशन ना करें। सेम टाइम जो आपने डिसीजन लिया अगर इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है तो आप उस पर रूट आउट करें, नहीं तो आप डाउट्स में ही रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे। वो यही चीज होती है कि जब आप सेल्फ डाउट करते हैं आप कंपेयर करते हैं, और कंपेयर जहां कंपैरिजन आ गया आप बैक ऑफ करते हैं। तो ये फैक्टर्स ना करें, और whatever you have, what strengths you have, just store them and carry it forward. That is the best advice I can give everybody. ओके। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी जो पर्सोना से भी रिलेटेड अगर हम बात करें, तो अभी सिंस बहुत सारी चीजें होनी है जो आप अभी प्लान कर रहे हो, लेकिन मैं भी और एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे ऐसे की कोर्सेज होंगे जो आप अपने पर्सोना के थ्रू लोगों को जो है सिखाते हो, ठीक है? Yes. तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से कोर्सेज हैं या कौन से पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स है जो आप बेसिकली रिकमेंड करना चाहोगे दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमारे यहाँ पे मतलब बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बारे में। देखिए सबसे फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश, यस, स्पोकन में कम्युनिकेशन का एंटायर चैप्टर आई टेक, एडवांस इंग्लिश, देन कम्स ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट। ओके। इंडियन एक्सेंट अगर फॉरेन जाते हैं लोग तो उनकी प्रेफरेंस इंडियन स्पीकिंग पैटर्न जो है हमारा वो नहीं होता है, एब्सोल्युटली। तो उसके लिए भी मैं काम करती हूँ कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, और हाउ वन मस्ट हैव द एक्सेंट। ओके। दैट आई वर्क, इंटरव्यू प्रिपरेशंस आई डू दैट वे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो मेन कोर है ही इसका मेरा पार्ट। And even you went up to those UPSC aspirants जो कि Yes. शायद इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और उनका जो इंटरव्यू होता है वहां पे उन्हें कैसे परफॉर्म करा जाना चाहिए, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हो? भी जैसे उनको जैसे वो कम्युनिकेशंस में आते हैं, Yes. तो उनको डूज और डोंट्स सेम टाइम में बताती जाती हूँ। एज आई सेड कि 1-on-1 में उनको पूरा स्क्रीन आउट करती हूँ, उनकी
उनकी स्पीच के जो एरर्स हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू रूट इट आउट कि जहाँ, क्योंकि होती है वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं या आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहने में आ रहा है, तो उसका सेफर साइड हो या उसको ट्रेन कैसे करना चाहिए, वो गाइडेंस देने में आती है। ओके, दैट्स वंडरफुल। अभी जैसे कि यहाँ पे मतलब एक कंक्लूजन ड्राइव किया जाए तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कहीं ना कहीं जैसे आजकल हाँ, अगर आप कोई इंटरव्यू में भी जाते हो, चाहे अगर आप यूपीएससी का कहो या फिर जॉब इंटरव्यू भी कहो, तो वहां पे जब आपकी स्क्रीनिंग होती है ना, तो आपके जो एकेडमिक्स है वो लोग देख चुके हैं। Yes. वो सब आपको जज कर चुके हैं। अब आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है तो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के, आपकी प्रेजेंटेशन को देखने के बेसिस पे ही आपको जो है वो हायर करते हैं। सो आई एम राइट Yes, एब्सोल्युटली। absolutely. तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या फिर इंग्लिश कॉन्फिडेंस कोच की, अब या फिर जैसे आप जैसे कोच हैं, उनकी क्या मतलब वो इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है? देखिए, एक चीज की अभी हम 5th इकोनॉमी है इंडिया, है ना? यस। एंड वेरी सून विल बिकम 4th इकोनॉमी। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं, वो और बेटर होंगे, स्मूदर होंगे। डेफिनेटली। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो इंडिया में ब्रेन है, नो वन इज अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। काफी इंडियंस का माइंड काफी शार्प होता है। एक जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स और जो उनकी ग्रूमिंग है, उस पर मैं बहुत काम करना चाहती हूँ और आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ओके। ठीक है, तो वो मैं उसके साइमल्टेनियसली, इसका रीजन है कि देखिए, जब इंडियंस को ऐसे माना जाता है कि इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, इनका कम्युनिकेशन या इनका कैरी करना अच्छा नहीं है, ये ग्रूम्ड नहीं है, तो आई फील समवेयर कि एज इफ आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। अब तो एब्सोल्युटली। आई फील बैड अबाउट इट, तो मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। ये जो एम्पावरिंग यूथ होता है, मतलब यूथ को जब अपन एम्पावर करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको आपकी स्टडीज और आपकी स्किल्स पे जाना जाए, ना कि आपको ये जाना जाए कि अच्छा ये उस कंट्री से, इसलिए ये ग्रूम नहीं है या Exactly. तो आई वांट टू वर्क ऑन दैट, आई एम प्रिपेयरिंग ऑन दैट ग्राउंड एंड दिस इज माय एजेंडा। बट आपने बहुत अच्छी बात बोली कि है ना, लाइक जब कोई ऐसे पॉइंट आउट करता है कि बीइंग एन इंडियन मे बी शायद ये चीज इनमें ना होगी, तो वो चीज लगती है। Yes. तो बिल्कुल आप उस कॉज के लिए काम करने के लिए तैयार। Sorry if I'm interrupting you. One incident happened with me, like Okay. not with me. Okay. I was in Kashmir. Somebody like one female was there. वो हम interaction start हो गया हमारा. तो she asked me afterwards. She was also speaking very fine English and I was answering in the same mode. तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन से स्टेट से हैं? तो मैंने उन्हें बताया मैं राजस्थान से हूँ. तो she got shocked. Okay. I was like कि what made you to behave this way? कहती राजस्थान के लोगों को कि अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है और उनका बिहेवियर मतलब नहीं है, इतने ग्रूम नहीं होते। तो मैंने कहा कि आप किसी इंडिविजुअल से यू वुड हैव मेट समवेयर, पर आप उस बेसिस पे आप हमारे स्टेट को कमेंट नहीं कर सकती। Absolutely. सब ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। तो वो चीज भी मेरे प्रिंट था कहीं कि ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि आपका जो रीजनल एक्सेंट है वो आपके इंटरव्यूज में, आपके उसमें नहीं आना चाहिए जब तक सीवी में ना दिखे कि ये इस स्टेट का है, आपके एक्सेंट में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। जो ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे अपने ही इंडिया के She was not commenting me. एंटायर स्टेट। Yes. तो वो चीज की वो शॉक हुई कि आप वहां से हैं जहाँ पे, तो ये चीज मुझे बड़ा हर्ट किया और वो मुझे याद भी रही चीज। दैट्स वन थिंग टू लर्न कि हाँ, हमें जो है अपने यहाँ पे इंडिया में रहकर भी जो है बहुत सारी चीजें करनी है। Yes. और अपने लिए भी करनी है, प्लस हमारे स्टेट को, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करनी है। ऑल्सो अब मैं जैसे जानना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे अभी जैसे हमने बात करी स्टूडेंट्स तो आपके पास होते ही हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जो शायद अभी कुछ करना चाहते हैं। Yes. तो एज आई थिंक इज नॉट द बार। Yes, अगर but- कोई भी आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो वो आपसे ले सकता है। Yes. तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने थ्रू ही जो है लोगों को बता दी जाए ये वाली बात भी। देखिए मेरा जो स्टूडियो है ये महारानी फार्म में बेस्ड है, जयपुर इससे। और आप फोन नंबर है मेरा यहाँ पे, एंड आप मेरे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे टच कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा, लिंक्डइन अकाउंट है। आप मुझे इन एनी वेज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग।
डेफिनेटली अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपनी 360 पर्सनालिटी को एकदम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। मैम की जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप कांटेक्ट कर से इनसे जुड़ सकते हैं। और इनके जो कोर्सेज हैं, इनके जो पर्सनली 1-to-1 जो क्लासेस होती है, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। जयपुर में कहाँ पे सिचुएटेड है मैम? मैं महारानी फार्म में हूँ, गायत्री नगर, महारानी फार्म। ओके, इट्स परसोना इंस्टीट्यूट, वहां पे जो है आपको सारी डिटेल्स जो है अवेल करा दी जाएंगी। सो वन लास्ट एडवाइस जो आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को देना चाहें अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो इस चीज में मैं कहूंगी कि देखिए, अभी जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव भी हो गया है, तो बेन भी है, बून भी है। यस, तो वैसे ही वो सेम डाउट में रहते हैं, जो बैकआउट कर इजीली करते हैं, वो डाउट्स में बहुत रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सोशल मीडिया हैंडल्स में कहीं मिसगाइड ना हो, एक अप्रोप्रिएट कोच और ट्रेनर के अंडर ही ट्रेनिंग करें, जो भी आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं। दैट इज द सेफर रूट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ चीपर वे और अ शॉर्टकट। तो ये लवली, बट ऑफ कोर्स आज आपके साथ बातचीत करके मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। आई होप मेरे व्यूअर्स को भी ज़रूर मिला होगा। So with this, I would love to conclude this, but I really enjoyed talking to you, and of course हमारे viewers जो हैं उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है, अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई भी XYZ, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मैम के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस कटिंग चाय। और बिल्कुल वी आर सो लकी दैट हमारे सीजन 2 की गेस्ट आप बने पहले। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली, एंड वी विश कटिंग चाय की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे जो है बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू।